All right, so good evening, all of you. Welcome you all to Socratic Debates and PSIRI channel on Telegram. तो आज हम लोग कर रहे हैं टॉपर का ऐसे। एक ऐसे की कॉपी है, अरविंद शाह सर की कॉपी है। पहला ऐसे इसमें, द राइजिंग मिसट्रस्ट अमंग मॉडर्न ह्यूमंस एंडेंजर देयर सर्वाइवल। तो क्वेश्चन ये है, रिपीट, राइजिंग मिसट्रस्ट, तो लोगों में मिसट्रस्ट हो रहा है मॉडर्न ह्यूमंस में, इसकी वजह से सर्वाइवल पे खतरा है। किसके सर्वाइवल पे बोला नहीं गया है। तो आप लोग बता दो क्या लग रहा है आप लोग को, टॉपिक इससे क्या समझ आता है। व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड फ्रॉम द टॉपिक। सर फॉर्मेट में चेंज किया है क्या? पहले पढ़ेंगे नहीं, पहले डिस्कस करना है क्या, फिर पढ़ना है क्या? सर पहले टॉपिक तो बता दो क्या है, टॉपिक समझेंगे तो आंसर पढ़ेंगे ना। क्वेश्चन तो बोल दो क्या है बस। ये लोगों के सर्वाइवल में खतरा आ रहा है मिस्ट्रेस के बढ़ने के कारण। ठीक है, एनी अदर इंटरप्रिटेशन। देयर सर्वाइवल लिखा हुआ है यहाँ, तो मॉडर्न ह्यूमंस। हाँ, एनी अदर इंटरप्रिटेशन। सर मुझे तो हॉब्स का लग रहा है, हॉब्स का थ्योरी टाइप। ठीक है, हॉब्सियन का स्टेट ऑफ नेचर वाला। ठीक है हाँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मिसट्रस्ट जो हो रहा है उसकी वजह से पूरी दुनिया को, वर्ल्ड को, यूनिवर्स को खतरा है। एनी अदर इंटरप्रिटेशन, कुछ और एक्स्ट्रा। ठीक है चांदलर सर, प्लीज गो अहेड एंड रीड। India and Pakistan both are a part of erstwhile united India before partition, and hence their culture, way of living, language, cuisine are same. So are the problems as well. Both nations face problem of extreme level of poverty. क्या लिखा है ये? Allows to largest number of poor in the world. Millions go to sleep hungry at night every day. Children across the border are wasted, stunted, and undernourished. Half of the women suffering from anemia. Both scroll down कर दो. Both nations also face problem of peace building and stability. Yet, despite having huge scope for cooperation in solving common issues, both nations went nuclear in 1998. What explains such action? Why should a nation have a duty of serving its population, spend hundreds of millions of dollars in building weapon of mass destruction होगा ना? In this context, in the upcoming write-up, we would ponder upon the central questions such as what exactly is a modern human, what is the reason for mistrust, how mistrust endangers their survival, and most importantly, how to rebuild the trust to save its survival. ठीक है, ये एंकर पहले. अच्छा लगा। और एनी अदर अल्टरनेटिव इंट्रोडक्शंस, सिर्फ इंट्रो बताओ। सर मेरे को तो इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा यार, तो वेरी वेरी नाइसली सम अप। आप लोग बता दो। तो फैमिली मुझे भी सेम इंट्रो रशिया यूक्रेन वार का हाँ जी, रशिया यूक्रेन वॉर से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपन। इंट्रोडक्शन, कोई कोट किसी को याद है, या किसी को कोई पोयम, किसी को कोई एनेक्डोट याद कर सकते हैं तो यार।
ठीक है सर, आगे पढ़ लो। Making of modern human. Medieval era was an era of darkness. Knowledge was stagnant. There was a decline of uh, reason, and science was sidelined. At the center of medieval era started religion, social morality, and authority. You couldn't question why rules were made, and you had to follow it without question. In this context, Europe, after fall of Constantinople and feeling of Europe, European from there to Italy and Greece started an era which we call Enlightenment and Renaissance, which is called rebirth of reason. With the rise of rationalism, man started questioning क्या लिखा है ये Blindly trusting. questioning Instead of blindly trusting. Thus began the age of modernity, followed by progress in science, decline of religion, and sovereignty of church was replaced by a nation state. Also began the emergence of capitalism, which promoted individualism, consumerism. In overall sense, there was trust coming from heart, was replaced with reasoning of mind. Now let us see how modern humans started mistrusting each other. Rising mistrust. लिखा है कि मॉडर्न ह्यूमन कैसे आया है। अभी मॉडर्न ह्यूमन एंड मिडिवल ह्यूमन में क्या डिफरेंस है ये बता रहे हैं, ये कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे इसमें कि मिडिल एरा में ऐसा था, साइंस था, रिलीजन था, वगैरह ही था, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे। तो मॉडर्न ह्यूमन क्या है, जो ट्रस्ट नहीं करता है ब्लाइंडली, ये बता रहा है ये। Rising mistrust. Modern era saw extraordinarily growth in its population, and population crossed 7 billion a decade ago. This was possible because industrial revolution, which started in Britain and soon spread to the rest of the Europe and West West along with Japan and East Asia. Rise of population resulted into increased consumption of limited resources. India, for example, lacked enough colleges and jobs, and competition had turned cutthroat. Along with this, our education system also usually focuses on competition and is employment focused. The undue focus on mark sheet and comparison within which Sharmaji's son has led to children being fearful, less confident, and depressed about their future and prospects. In the economic sphere, with the reforms such as liberalization, privatization, and globalization, there is advent of Western values in India, as well as such as liberalism, individualism, consumerism, and materialism. All these values, fueled by extreme competition and lack of ethical education, led to erosion of trust. There is a belief that nice finish last, and trust is broken at every opportunity. At national level, the democracy, which is based on election and majority, leads to parties going for undue means, which has increased money and muscle power in election. As per ADR, 42% of detected parliaments had criminal record among them. Politics and ethics, which were earlier seen as one and same by philosophers such as Plato and Aristotle, have been substituted by Machiavelli in modern era. Thus, we see parties breaching trust of public and also of other parties. Due to above, public has stopped trusting the politicians. Bureaucrats have also lost the trust due to their elitism and corruption. At individual level, with the rise of modern nations, state was fixed boundaries, resulted into neighbor turning into enemies. India and China have been neighbors for thousands of years, saw their relation going bad once they became modern nations. Thus, through modern era ended the blind trust system of religion and divine king.
It also did a great damage to trust between public and society. And this erosion of trust between section of society and कौन सा nation है ये? Between nation, चलो आगे देखते हैं. Section of society and nation has very detrimental effects to the extent that it is now endangered the survival of humanity itself. Threat to survival. तक समराइज करते हैं पूरा, बस कीवर्ड बोल देना आप. मैं कर लूं क्या फिर? हाँ चलो. ठीक है. तो क्वेश्चन था राइजिंग मिसट्रस्ट अमंग मॉडर्न ह्यूमंस, इसकी वजह से हाउ इट इज एंडेंजरिंग सर्वाइवल. तो स्टार्ट करा उन्होंने इंडिया पाकिस्तान से कि भाई दो नेशन है, सिमिलर बहुत सारी चीजें थी इसमें, लिविंग, लैंग्वेज, कल्चर, क्यूजीन वगैरह, लेकिन एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉवर्टी भी है, हंगरी भी है. लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स क्या कर रहे हो? न्यूक्लियर वॉरफेयर कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं. 3-4 वॉर हो गए. तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इसमें फिर इन दिस कंटेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे. एंकर पैराग्राफ बोल दिया कि मॉडर्न ह्यूमन क्या होता है, राइजिंग मिसट्रस्ट कैसे है, सर्वाइवल कैसे डेंजर हो रहा है, रीबिल्ड कैसे करेंगे. तो ये सब अपन ने देखा. ये पेज नंबर 1 था. ये पेज नंबर 2 पे राइजिंग मॉडर्न ह्यूमंस की बात कर रहे हैं. मॉडर्न ह्यूमन की बात करने के लिए उन्होंने मेडिवल एरा का बताया कि क्या था, हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, रिलीजन, सोशल मोरालिटी था. फिर इसमें यूरोप में क्या हो गया, एनलाइटनमेंट आया, रीबर्थ ऑफ रीजन आया, प्रोग्रेस ऑफ साइंस हो गया, डिक्लाइन ऑफ रिलीजन हो गया. यहाँ पे आया कि अपन ट्रस्ट नहीं करते किसी को, तो इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म डाल दो, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी डाल दो कि व्हाई आर वी नॉट ट्रस्टिंग. ये है मॉडर्न ह्यूमंस नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर. फिर राइजिंग मिसट्रस्ट कैसे हो रहा है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, ब्रिटेन आया, जो फिर इंक्रीज कंपटीशन हुआ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, स्प्रेड हो गया. कंपटीशन में एग्जांपल दिया, मार्कशीट को कंपेयर करते हैं शर्मा जी का बेटे के साथ में. फिर इकोनॉमिक स्फीयर में बताया भाई कि लिबरलिज्म, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, इंडिविजुअलिज्म आया, कंज्यूमरिज्म आया, मटेरियलिज्म आया. तो ये हुआ इकोनॉमिक स्फीयर. नाइस फिनिश लास्ट. ट्रस्ट इज ब्रोकन. ठीक है. फिर नेशनल लेवल में बताया भाई कि पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह में ऐसे ट्रस्ट नहीं है. 43% क्रिमिनल्स है. प्लेटो अरिस्टोटल ने सेपरेट करने, रिलीजन पॉलिटिक्स सेपरेट करा, मैकियावेली वगैरह. क्या इंटरनेशनल लेवल में इंडिया चाइना का एग्जांपल दिया कि इतने सालों से हम पीसफुली रह रहे थे, ट्रस्ट था, अभी अचानक जैसे मॉडर्न बन गया तो ट्रस्ट चला गया. फिर डिवाइन किंग वगैरह वो सब चला गया, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी. फिर आगे है थ्रेट टू सर्वाइवलिज्म. ठीक है सर, कंटिन्यू. ये कितने पेजेस हो गए पूरे इतने में? सेकेंड पेज, थर्ड पेज. सर कंटिन्यू. Threat to survival. When the trust declines between a child and his parents, children rebel against parents, and parents are forced to employ undemocratic and coercive means to control the child. When couples stop trusting each other, there is excess of doubt. They stop enjoying the togetherness and start spying each other. When the trust declines between brothers, they fight for property and divide families. By all means, mistrust, if present in family, uh, threatens family ethos. On societal level, when trust is broken, neighbors fight with each other for land, for property. They make their life and life of those around them unlivable. When we don't trust the poor and marginalized, we don't help them. And when they don't trust us, they start threatening the social peace and stability. That leads to rising theft, crime, murder, and
upheaval. On higher level, when when states don't trust each other, they fight for river. For example, Kaveri dispute. Militancy, extremism, nationalism, all can be attributed to lack of trust in stakeholders in one way or other. The biggest threat to our survival comes because of lack of trust on global level. For example, world went on the brink of nuclear world war in Cuban Missile Crisis in 1952 because there was mistrust between USA and USSR. Kautilya in his Arthashastra also explained the security dilemma that a nation faces because they can't trust each other. Lack of trust lack of trust forces to go for arms race and power maximization. World currently faces the problem of climate change. IPCC reports held that by world current level of emission rate, world would see a rise of 2 degree temperature compared to pre-industrial level. Moreover, oceans are getting filled with plastic, air is turning unhealthful. Due to climate change, glaciers are melting and sea level is rising at alarming rate. Apart from that, the world faces problem of terrorism, inequality, poverty and hunger. If all the nations could trust and cooperate with each other, the hunger and poverty can be easily eliminated as the world already has the capability to produce required food. Climate change can also reverse if the world would not have been mistrust. Developing world doubt the intention of developed world because developed world has historical responsibility of climate change due to industrial revolution. Thus, there is an urgent need to rebuild the trust if we want to ensure our survival. Let us look at how can we build the trust and fight together. Rebuilding trust. It has been held that we have guided missiles and misguided humanity. Thus, humanity needs to be guided in the right manner. We need ethics and value education at our school. We need to build strong and confident children because it is the fear that breeds mistrust. We need to move from mark sheet based success to value based success. We need to move from rote learning to actually understanding. This will ease their employability and will make them job creators instead of being job seekers. The cutthroat competition needs to stop. Competition should give way to competition that will increase the cooperation that will increase the trust. ये पूरा पैरा ना एजुकेशन की कोई उसमें लिख सकते हैं अगर चाहिए तो कोई नोट कर लो. At societal level, we need to ensure there is a fraternity uh, and menace such as untouchability, gender discrimination, caste discrimination needs to stop as they differentiate between humans and create trust deficit between each other. We need rule-based order instead of caste-based order. For that, we have taken steps such as Article 17 of Constitution and SCST Act. Similarly, for education reform, we are about to reform it holistically with new national education policies. Economically, to reduce the trust between government and taxpayer, government has come up with honoring the taxpayer and tax charter and Vivad Se Vishwas scheme. Gandhiji also talked about trusteeship to reduce trust between society and capitalists. Trust deficit आएगा ठीक है. On national level, there has been reform to stop criminalization of politics by declaring incidents and banning convicts from filing elections. Judicial reforms such as Gram Adalat (PIL) are making sure that justice is done, which rebuilds trust. On climate front, there has been global effort to build trust and coordinate
coordinate in form of Rio Earth Summit, Kyoto Protocol, establishment of UFCCC, UNCCD, UNCBD, and a recent Paris Agreement. India has led the world in building international solar alliance. On global level, there has been building of institutions such as UN, WHO, ILO, WTO, and treaties such as NPT, CTBT. All of these are trust-building measures and ensure that security dilemma of nations reduce. All these steps are making sure that humanity figures out that humanity pivot back to the change it faces because of mistrust. We need global coordination and more sustained efforts to ensure that our survival. As it is said, we are all passengers in the ship of Mother Earth and there is no crew. Thus, we will have to be our own guide and together we can save the world. The key is to trust each other. तो अपन ने ऐसे का शुरुआत किया था इंडिया पाकिस्तान से पहले पेज में, फिर अपन आए थे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वगैरह, एंकर पैराग्राफ आया, फिर मेडिवल एरा में बताया कि मॉडर्न ह्यूमन क्या था, मॉडर्न ह्यूमन कैसे आया है, राइजिंग मिस्टेट कैसे हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बताया, इंक्रीज कंपटीशन, मार्कशीट, शर्मा जी का सन, ये सब इंडिविजुअल लेवल में बताया सब पहले। फिर अपन ने इकोनॉमिक स्फीयर में बताया कि इंडिविजुअल लेवल में क्या हो रहा है, नेशनल लेवल बताया, फिर बताया इंटरनेशनल लेवल पे क्या हालचाल है, फिर रिलीजन वगैरह में बताया, फिर थ्रेट कैसे है, थ्रेट में ट्रस्ट बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट बताया, कपल के अंदर ट्रस्ट नहीं रहता तो क्या होगा ये बताया, ब्रदर जब होते तो क्या होता है, फैमिली में क्या होता है। तो 4-5 डायमेंशन आ गए यहाँ पे, चाइल्ड, पेरेंट, कपल, ब्रदर एंड फैमिली, 3-4 चीज़ आ गई यहाँ पे ना। फिर सोसाइटल लेवल पे आए जहाँ पे नेबर फाइट करेंगे, मार्जिनलाइज सेक्शन झगड़ा करेंगे, तो यही है थ्रेट टू सर्वाइवल कैसे हो रहा है। फिर सोसाइटल लेवल में कावेरी डिस्प्यूट वगैरह भी बोला है, एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म वगैरह है सब ना। फिर बिगर थ्रेट है वर्ल्ड का, पकड़ लो फॉर एग्जांपल, तो वर्ल्ड में इन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोला है, यूएसए यूएसएसआर बोला है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र सिक्योरिटी डिलेमा की बात करी है, आर्म्स रेस, पावर मैक्सिमाइजेशन, फिर एनवायरनमेंट चालू करते हैं, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, आईपीसीसी रिपोर्ट, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं सब, ये सब भी रिजल्ट है, मतलब थ्रेट है उसी का, मिसट्रस्ट का। फिर नेशंस, नेशंस अगर ट्रस्ट नहीं करते इसलिए हंगर हो रहा है, पावर्टी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज सॉल्व नहीं हो रहा है, डेवलपिंग में हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी झगड़ा चल रहा है, तो ये सब हो रहा है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। देखिए ये कितने पेज में है, पेज नंबर 8 से लेकर 9 तक। 9 के बाद रीबिल्ड कैसे करेंगे, फिर भाई गाइडेड मिसाइल है, मिसगाइडेड ह्यूमैनिटी है, इथिक्स लाएंगे, वैल्यू एजुकेशन लाएंगे चिल्ड्रन में वगैरह, कॉन्फिडेंस लाएंगे, मार्कशीट की जगह पे वैल्यू बेस्ड सक्सेस लाएंगे, रोट लर्निंग की जगह पे एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस करेंगे, कंपटीशन जगह पे कोऑपरेशन करेंगे। फिर सोसाइटी लेवल में क्या करेंगे, फ्रैटर्निटी करेंगे, अनटचेबिलिटी हटाएंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाएंगे, रूल बेस्ड ऑर्डर लाएंगे, आर्टिकल 17 SC/ST एक्ट, ये सब करना है। फिर इकोनॉमिक लेवल पे क्या करेंगे भाई, टैक्स पेयर्स है तो ऑनरिंग द ऑनेस्ट करना है, विवाद से विश्वास स्कीम लाना है, एंड ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ गांधी भी बोल सकते हैं। नेशनल लेवल पे क्या करना है, स्टॉप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, डिक्लेयरिंग इंसिडेंट वगैरह जो है, जीरो टॉलरेंस अपनाओ यहाँ पे, ग्राम अदालत PIL वगैरह का यूज कर लो। फिर क्लाइमेट के बारे में रियो समिट वगैरह ये सब करना ना, ये सब मतलब अच्छे मेजर्स है जिससे इम्प्रूवमेंट होगा। फिर ग्लोबल लेवल में क्या करना है, ILO हो गया, WTO, UN, NPT, CTBT, ये सब करना है, इससे सिक्योरिटी डिलेमा कम होगा। फिर वी आर ऑल द पैसेंजर्स इन द शिप ऑफ मदर अर्थ एंड देयर इज नो क्रू, किसका कोट है ये, मार्शल मैक्लुहान है क्या या कोई और है यार, कैसे बोल गया मैं ये, तो बता दो यार प्लीज इसको, वी आर ऑल द पैसेंजर्स है किसका कोट है।
चलो हम भूल गए। इजराइल सर याद आ रहा है क्या? वी आर ऑल द पैसेंजर किसका कोट है? अरे पीएसआर वाले बोल दो, किसी को पता हो तो। स्पेसशिप इकोनॉमी, काउबॉय इकोनॉमी, याद आ रहा है? मार्शल मैकलुहन का है। ठीक है मैम, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है, तो अभी अपन ने 26 मिनट्स हो गए हैं। वी कैन स्पेंड 10 to 15 मिनट्स ऑन डिस्कसिंग द ऐसे। किसी को अगर कुछ भी ऐड करना हो तो बोल सकते हो आप लोग। एक इलेक्शन प्रोसेस का मिस्ट्रस्ट की बात कर सकते हैं, वो जो यूएस इलेक्शन के बाद हुआ था ना, व्हाइट हाउस सीज कर लिया था प्रोफेसर ने। ठीक है सर। सर फिर जो भी बोल सकते हैं ना कि मिसट्रस्ट होता है तो मॉब लिंचिंग होती है, मिसट्रस्ट होता है तो कम्युनलिज्म होता है, वायलेंस हाँ, होता है सोशल स्फीयर में वो। हाँ, मैं ऐसे में ये पॉइंट्स खोज रही थी। मैंने बोल दिया ना, कोई बात नहीं, आगे बताओ। और कोई पॉइंट खोजा क्या मैं? इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस वाला आएगा, यस डेफिनेटली। भक्ति मूवमेंट और उसके सॉल्यूशन आएंगे। सब मिसट्रस्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल पेट्रियार्की से रिलेट करके उसको कर सकते हैं कि डिस्पाइट ऑफ द वीमेन एम्पावरमेंट, हाँ, ये वुमेन पिंकिफिकेशन ऑफ जॉब एम्पावरमेंट और पे हिंड्रेस पैदा कर रहा है। क्लास सीलिंग ये सब अभी भी इम्पैक्ट कर रहा है। और सब मिसट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट और सिटीजन में ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि जब गवर्नमेंट धारावी के स्लम ड्वेलर्स को वो इवैक्यूएट कराने गई थी तो वो लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे थे। बहुत अच्छा पॉइंट है मैम, बहुत बढ़िया पॉइंट है। सेम पॉइंट सिमिलर है ट्राइबल वाला। ट्राइबल का मिसट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर, इसीलिए नक्सलिज्म अगर होता है, वायलेंस होता है, इसीलिए एनरोलमेंट नहीं बढ़ता है स्कूल में वगैरह ना। और बताओ सर। स्टेट लेवल पे बोल सकते हैं अपन इंटर स्टेट रिलेशंस, मतलब जैसे ये कावेरी का डिस्प्यूट का दिया है ना, वैसे बहुत सारे जगह पे है। महाराष्ट्र कर्नाटका वाला है, ये बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये भी एक मिसट्रस्ट का ही चीज है ना। कि जब रिसेंटली हो गया था आफ्सपा, सर आफ्सपा है ना डिफेंस वाला, अच्छा। एक मिसट्रस्ट का ही रिजल्ट है, या फिर जो भी बोलो ना। ठीक है, आगे बताओ। और और एग्जाम्पल बताओ चलो। डायमेंशन बोल दो चलो, एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे अपन। बस डायमेंशन बोल दो कि इस डायमेंशन में सोच सकते हैं। तो इसमें न्यू हेडिंग भी ओपन कर सकते हैं कि
क्यों हमेशा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मिसट्रस्ट का हाँ बात किया हुआ है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि हमेशा हमें सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी। तो बिल्कुल एग्जाम्पल, बिल्कुल। चाइना जैसे पॉलिसी लाई थी कि ह्यूमन पॉपुलेशन कम करना है, लेकिन वो अभी उस पे ही उल्टा पड़ गया और उसे अभी मोर चाइल्ड वाली पॉलिसी फिर से लानी पड़ रही है। या फिर जापान अपने सिटीजन्स को ज्यादा इंक्विसिट कर रहे हैं कि ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करे। ठीक है मैम, इसी में नेहरू जी का पॉलिसी आएगा ना, वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला पॉलिसी। तो पूरी हाँ, इंडिया ने नेहरू जी के ऊपर ट्रस्ट किया, वो आइडियलिस्टिक पॉलिसी था। तो मिसट्रस्ट चाइना ने दिखा दिया, तो गलती हो गई अपने से, हमने ट्रस्ट करा चाइना पे। और बताओ। डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी बोल सकते हो, श्रीलंका जो पकड़ लो आज एग्जांपल। श्रीलंका के लोगों ने लीडर्स पे ट्रस्ट किया, पॉलिटिशियंस ने चाइना पे ट्रस्ट किया, और डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी फंस गए। तो हमेशा मतलब ट्रस्ट करने से सॉल्यूशन आएगा ये नहीं है, ये काउंटर व्यू पॉइंट आएगा इसका। और बताओ, और कुछ आएगा तो। व्हाट एल्स? सर डायमेंशन बोल दो ना यार, एनवायरनमेंट जैसे हो गया। एनवायरनमेंट में ग्रेटर हम लोग बोल सकते हैं कि यार, और कोई एग्जांपल है ट्रस्ट करने से क्या हो रहा है, मिसट्रस्ट करने से क्या हो रहा है? एक ये भी लिख सकते हैं, जो रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हो गई थी ना, तो इंडिया पाकिस्तान में कुछ लेवल तक ट्रस्ट था, इसलिए उन लोग ने रिटेलिएट नहीं किया। हाँ सर, कह सकते हैं। मिसट्रस्ट के एग्जाम्पल में एक फर्दर ऐड कर सकते हैं कि लोग वैक्सीन लेने से डर रहे थे, तो मिसट्रस्ट शो करता है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। उसमें टर्म है मैम, वैक्सीन हेजिटेंसी। यस सर। और कुछ? मैम एजुकेशन सेक्टर में बोल सकते हैं ना, ट्रस्ट बिटवीन टीचर एंड ये स्टूडेंट। अगर नहीं होगा तो गड़बड़ होगी, फिर फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, और क्या एग्जांपल है राइजिंग मिसट्रस्ट के बारे में, या फिर सर्वाइवल के बारे में, कैसे डेंजर हो रहा है? थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर बोल सकते हैं सर। रशिया और यूएसए में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ट्रस्ट नहीं है, ये तो फिर आज भी वो सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं। और क्या एग्जांपल आएंगे? इजराइल सर, सुजैन मैम, महेश सर, आप लोग भी बोल सकते हो। सर कोई कोट या फिर कोई पोयम या कुछ और है ट्रस्ट के बारे में? Am I audible? सुजैन मैम, आवाज आ रहा है क्या मेरा? इजराइल सर। टाइप करिए एक सेकंड।
ऐड करना है किसी को या फिर आगे चले? आई थिंक इसमें सर ने खुद ही सारे डायमेंशन कवर कर ही दी, हाँ सर, हाँ, तो मुझे अभी भी तो सही लग रहा है, रिपीट ही होगा। काफ़ी है। तो सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ क्या सर मैं? सफिशिएंट इनफ फॉर दिस ऐसे? सर एक बार सारे के सारे एग्जांपल बोल दो जो जो देखे आपने लेवल्स पे डायमेंशन पे फटाफट। नहीं सर, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में सर। सर अभी मैंने पूरा अटेंड कर लिया, एक बार बोल दो। सर मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप बोल दो फिर। सर मैं टाइप कर रहा हूँ ना साइमल्टेनियसली। चलो सर, फिर आप एग्जांपल बोल दो पहले आप, फिर मैं बताऊंगा एग्जांपल जो इसमें दिए थे। जो आप लोगों ने लिखे हो वही बोल दो सर, अलग से तो नहीं होंगे ना कोई। चलो सर बोल देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें वैसे एग्जांपल ज़्यादा दिए नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के एग्जांपल से स्टार्ट कर दिया है। फिर न्यूक्लियर 1998 में हुए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए, एंकर पे दिया। मेडिवल एरा में बताया मॉडर्न ह्यूमन क्या था और मॉडर्न एरा में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है, एनलाइटनमेंट आ गया, रीबर्थ ऑफ रीजन आ गया, प्रोग्रेस हो रहा है साइंस में, डिक्लाइन ऑफ रिलीजन हो रहा है। फिर राइजिंग मिसट्रस्ट में ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया ब्रिटेन में, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया। तो मार्कशीट का एग्जांपल दिया, कंपैरिजन, शर्मा जी सन। इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म वगैरह आया है, कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म। इरोजन ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, नाइस फिनिश लास्ट, ट्रस्ट इज ब्रोकन। नेशनल लेवल में सर पॉलिटिकल पार्टीज का बताया, 42% क्रिमिनल्स है, एडीआर वगैरह ना। पॉलिटिशियन इथिक्स, प्लेटो, मैकियावेली वगैरह हो गया। फिर इंटरनेशनल लेवल, इंडिया चाइना हो गया। रिलीजन बताया, किंग का, और खत्म हो गया ना वो सब। फिर थ्रेट टू सर्वाइवल कैसे है उसके एग्जांपल बताया। चिल्ड्रन का बताया भाई, चिल्ड्रन पेरेंट के बीच में एग्जांपल दिया। कपल के बीच में झगड़ा कैसे होता है, ब्रदर्स के बीच में झगड़ा होता है, फैमिलीज के बीच में क्या होता है। सोसाइटल लेवल में नेबर्स फाइट करते हैं, मार्जिनलाइज में ट्रस्ट नहीं है, एक कास्ट दूसरी कास्ट पे ट्रस्ट नहीं कर रही है। फिर स्टेट लेवल में बता दिया सर कि कावेरी डिस्प्यूट है, ये अलग अलग स्टेट से, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह। जैसे महाराष्ट्र कर्नाटका में बॉर्डर डिस्प्यूट है, बेलगांव वाला। आपस्पा का एग्जांपल देख लो, मिलिट्री वाला बोल सकते हो ना। एक्सट्रीमिज्म हो गया, नक्सलिज्म हो गया। वर्ल्ड में सर न्यूक्लियर क्राइसिस हो गया था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यूएसए यूएसआर के बीच में ये कोल्ड वॉर चल रहा था, आर्म्स रेस हो रही थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में सिक्योरिटी डिलेमा की बात करी है। क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, 2 डिग्री सेल्सियस वगैरह, ये सब भी एनवायरमेंटल डिलेमा है। और नेशंस जो है हंगर पावर्टी से जाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है वर्ल्ड में, कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। अपने पास खाना बहुत है लेकिन कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, फूड वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वाला है जो एनवायरमेंट में आता है। फिर रीबिल्ड कैसे करना है, गाइडेड मिसाइल, मिसगाइडेड ह्यूमैनिटी। एथिक्स, वैल्यू एजुकेशन करना है, मार्कशीट बेस्ड की जगह पे वैल्यू बेस्ड सक्सेस लाना है, कोऑपरेशन लाना है कंपटीशन की जगह पे, सोसाइटल लेवल पे फ्रैटर्निटी लाना है, अनटचेबिलिटी कम करना है, डिस्क्रिमिनेशन हटाना है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर लाना है, आर्टिकल 17 SC/ST एक्ट वगैरह लेके आए। इकोनॉमिक्स में अपन विवाद से विश्वास, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये सब करना है। गांधी का ट्रस्टीशिप मॉडल है। नेशनल लेवल में सर ग्राम अदालत, PIL। क्लाइमेट, रियो अर्थ समिट, UNFCCC, UNCCD, पेरिस। ग्लोबल लेवल पे UN, WTO, ILO, NPT, CTBT, ये सब लाएंगे। कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, लिबरलिज्म करेंगे। हवेवर, मार्शल मैक्लुहान लास्ट में बोलेंगे, वी आर ऑल द पैसेंजर्स इन द स्पेसशिप ऑफ मदर अर्थ एंड देयर इज नो क्रू। हम सभी क्रू है, हम सभी पैसेंजर है, सभी को सब कुछ करना है। तो इसीलिए ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड। जिन्होंने इनपुट्स दिया उनको एक्स्ट्रा थैंक यू, जिन्होंने नहीं दिए वो अगली बार दे देना।